plant and animal. There is a most important topic here, a transgenic microbes, plant and animal. There is also called to genetically modified organism, means GM organism. There is a genetically modified organism. A transgenic organism is contained in their genetical makeup. A foreign gene, that is a gene from the another species or another kind of organism. A transgenic arise through the recombinant DNA technology. There the first topic is transgenic microbe. So here is a transgenic microbe. The bacteria are easily to be genetically modified by adding a foreign gene into their plasmid through the rDNA technology. As you have already learned in this lesson, a transgenic bacteria with the insulin gene and human growth hormones, a gene has been to the clone to the provide this hormone for a human use. There is the most important. There are insulin genes and human growth hormone gene has been to clone to be provide this hormone to human use. And other use of transgenic bacteria are decomposing a pollutant and extracting a metal such as a copper and gold. That is the most important. And the next is a transgenic plant. There are some genetical or modified plant are herbicides and pest resistant, and are genetically they are modified tobacco plant containing a gene from to the fabulous and emit of green light. Here is the most important though. There's a BT crops. There's a what is mean to the BT crop. The BT crops are genetically modified crop and therefore also is called transgenic crop. There is a BT is also called to the transgenic crop. There is a modified crop. And the name of BT crops because the transgenes are their foreign genes transferred into crop by the soil is a bacterium Bacillus thermogenesis, means BT, the bacillus, and the bacterium is a Bacillus thuringiensis, it means to the BT. The transferred genes is a transgenes is a not a harmful to be host crop into the was are genotypes. The genes has been to the added. It is a code for a protein is called cryoprotein. There is a code for a protein is called cryoprotein. The bacteria is a BT live in the soil. In the genotypes there is a genes called as cry genes which are produced on insecticides insect killing protein. That is called insect killing protein. A BT crops produce this protein when insect pest eat the BT crop. The cryoprotein is converted into the toxin substance by the enzyme present in the stomach of the pest. This tonic substance kill the pest, and the chrysogenes has been to isolate and transfer it into many crops. Example: cotton, maize, brinjal, tomato, and tobacco as a test in the field, and they are resistant to the insect attack. Use of BT crops reduce this need for a spraying insecticides to kill to insect pest, and insecticides are harmful to human and other animals. There is a most important here. The insecticides are harmful to human and other animals. However, but BT crops can be only be cultivated after permission from a government of India. The under Environment Protection Act, means EPA. Their Environment Protection Act is the most important. This is because the internal is very there. The first is the sand BT crops make the toxin throughout their growing season. The pest may be involved with our BT distance. And second is non-target species like the butterflies may be die if they are feed on BT pollen. There is a very bad here. There is a non-targeted species like a butterfly is a dead for the BT is a feeded on the dye and the BT pollen. There is a very dangerous and genetically modified crops may be harmful for the environment as they may be pass the genes into the close relative plant which may be useless for a human but perpetuate to the super weeds. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे समक्ष आया है परजीवी
सूक्ष्म जीव, पादप तथा प्राणी। देखिए ये कई मानने में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें हम सभी सूक्ष्म जीवी, पादप हो या प्राणी के विषय में हम चर्चा करेंगे। कहते हैं इन्हें आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव, यानी इसे हम क्या कहते हैं, जीएम ऑर्गेनिज्म, यानी जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। कहते हैं परजीवी जीनों की संरचना में बाहरी जीन अन्य प्रजातियों से प्राप्त जीन या अन्य प्रकार के जीव के जो है जीन प्रविष्टता किए जाते हैं। कहते हैं परजीवी जो है जीव प्रयोजन डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। कहते हैं सबसे पहले हमारा यही आता है परजीवी, सूक्ष्म जीवी यानी सूक्ष्माणु, यानी ट्रांसजेनिक मैक्रोब। ट्रांसजेनिक मैक्रोब जो क्या होती है, देखिए जैसे कि आप पहले ही पढ़ चुके हो कि डीएनए प्रौद्योगिकी की सहायता से बाहरी जीन को बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में प्रवेश कराया, यानी संयुक्त कारक उनकी आनुवांशिक रूपांतरण आसानी से किया जा सकता है, जिसके विषय में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कहते हैं मानव वृद्धि हार्मोन जीन व इंसुलिन जीन युक्त परजीवी बैक्टीरिया को इन हार्मोनों को मानव के प्रयोग के लिए प्रदान करने के लिए क्लोन किया जा सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखती है कि इसको क्लोनिंग किया जा सकता है। लेकिन देखा जाए तो परजीवी बैक्टीरिया को अन्य उपयोग प्रदूषक के अपघटन एवं धातुओं जैसे तांबे तथा सोने को निष्कर्षण में भी हो सकता है। तो वो बातें कई मायने में इंपॉर्टेंट थी, लेकिन अगर देखा जाए परजीवी पादप यानी ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो होती है, तो प्लांट्स में इसका क्या महत्वपूर्ण स्थान है। कहते हैं कुछ आनुवांशिक रूप में रूपांतरित पादप जो है शाकनाशी या पीड़क जीवी प्रतिरोधी होते हैं, यानी शाकनाशी या पीड़क जीवी प्रतिरोधी भी होते हैं। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित तमाकुल के एक पौधों में खाद्य तौर यानी जो है फायरफ्लाई का एक जीन प्रविष्ट कराया जाता है, जिसके कारण यह हरा जो है प्रकाश उत्सर्जित करता है। देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है कि अगर रूपांतरित तमाकुल के पौधों में अगर जुनून यानी फायर फ्लाई का एक जीन प्रविष्ट कराया जाए, तो जिसके द्वारा जो होता है हरा प्रकाश उत्सर्जित होता है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आता है बीटी फसलें। देखिए बीटी फसलें अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है। कहते हैं ये फसलें जो होते हैं आनुवांशिक रूप में रूपांतरित पादप होते हैं, जिन्हें परजीवी फसलें भी यानी ट्रांसजेनिक क्रॉप्स भी कहते हैं। इन्हें बीटी फसलें इसलिए कहा जाता है क्योंकि परजीवी अथवा जो है विजातीय जीन को जो है मृदा जीवाणु यानी बैसिलस यूरोजेनेसिस यानी बीटी द्वारा फसलों में स्थानांतरित किया जाता है। यानी एक जीवाणु का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम बैसिलस कहते हैं, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस जो है बीटी के नाम से जाना जाता है, इसलिए हम इसको बीटी फसलें भी कहते हैं। ठीक है, इसको स्थानांतरित किया जाता है। स्थानांतरित जीन का जो है परजीन उस परपोषित जीन के लिए हानिकारक नहीं होता है, यानी ये जो होती है परपोषित जीन के लिए हानिकारक नहीं होता है जिसके जीन प्रारूप में जीन डाला गया हो, लेकिन यह काय प्रोटीन नामक जो है प्रोटीन को कोडित कर देता है। यानी ये काय प्रोटीन नामक प्रोटीन को ये कोडित करता है, जो कि अलग बात यहाँ पर रखती है। अगर देखा जाए बीटी जीवाणु मृदा में पाया जाता है, इसके जीन प्रारूप में एक जीन होता है जिसे हम काय जीन लिखा जाता है, जो पीड़कनाशी यानी पेस्ट मारने वाला होता है, यानी पीड़कनाशी होता है, पेस्टिसाइड जिसे आप कहते हो, यानी पेस्ट मारने वाला जो है केमिकल होता है। प्रोटीन का स्वेद करता है और बीटी इसी प्रोटीन को उत्पन्न करता है। देखिए जिसको मारने के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है, वही प्रोटीन जो है बीटी जो है उत्पन्न करता है। यानी जब कोई पीड़क कीट बीटी फसलों को खाता है तो इसके आमाशय में विद्यमान एंजाइम क्राई प्रोटीन में बदल देता है और उस पीड़क के कीट खा जाता है। यानी इस प्रकार जो है पीड़क कीट को खा जाता है, जो कि काफ़ी मायने में इम्पोर्टेंट रखता है। कहते हैं अगर देखा जाए काय प्रोटीन के पूर्तिकृत कर दिया जाता है और अनेक फसल जैसे कपास हो, मक्का हो, बैगन हो, टमाटर हो और तमाकुल में स्थानांतरित कर दिया जाता है तथा खेतों में इसका परीक्षण भी किया गया है। ये फसलें जो है कीटों पिड़कों आक्रमण के लिए प्रतिरोधी का कार्य भी करता है। बीटी फसलों पर कीटनाशियों का छिड़काव करने की आवश्यकता कम हो जाती है क्योंकि पीड़कनाशी मानव एवं अन्य जंतुओं के लिए हानिकारक होता है। देखिए बीटी फसलों पर कीटनाशी का छिड़काव करने की आवश्यकता कम हो जाती है क्योंकि पीड़कनाशी आपको पता ही है कि मानवों और जंतुओं के लिए कई मायने में हानिकारक होता है और कई मायने में उनके लिए जो है बहुत ही बुरा प्रभाव भी डालता है। फिर भी बीटी फसलों के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी न्यू दिल्ली यानी ICAR की अनुमति के बगैर नहीं उगाया जा सकता है। ये इसलिए कि कीट वैज्ञानिक निम्न बातों को से काफ़ी चिंतित है, इन बातों से काफ़ी उनको प्रभावित भी किया है। तो पहली बात तो यही था जो उनको काफ़ी प्रभावित किया था, वो था क्योंकि बीटी फसलें अपने उगाए जाने की समझ अवधि में
अब विष उत्पन्न करती है, यानी जितना टाइम इसको उगाया जाता है ये सिर्फ विष ही उत्पन्न करता है, यानी जहर ही उत्पन्न करता है, जिसके कारण पीड़क बीटी के लिए प्रतिरोधकता का उत्पन्न भी कर सकता है। यानी अगर मान लीजिए किसी चीज़ को हम वही चीज़ दे रहे हैं तो हो सकता है आने वाला टाइम में कीट जो इसका प्रतिरक्षा तंत्र बन जाए। तभी तो आपको देखते हो कि जो बहुत से मच्छर होते हैं मरते नहीं हैं। आज जितना भी फास्ट गार्ड, मोर्टीन जितने भी जला लो उस पर कोई असर नहीं कर रहा है, क्योंकि वो उसके क्या हुआ, प्रतिरोधक क्षमता उनका जाग चुका है और उसके खिलाफ वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, वे जाति जिनके मरने का लक्षण नहीं होता, जैसे जो तितलियां हो जाए, लेकिन बीटी पराग पर जो भोजन करने पर वो मर सकती है। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि जिनको हम नहीं मारना चाहते हैं वो भी जीव इसके वजह से मर जाएंगे। तो ये बहुत बीटी जो है बहुत काफ़ी खतरनाक भी सिद्ध हो सकता है और पर्यावरण में उपस्थित कई जीवों के लिए ये घातक भी सिद्ध हो सकता है। कहते हैं अनवांछित रूप से रूपांतरित फसलों में पर्यावरण के लिए भी हानिकारक हो सकता है, क्योंकि वे इन जीन के उसे संदर्भ संबंध पौधों में पहुंच जाता है जो मनुष्य के लिए बेकार हो सकती है, लेकिन अतिरिक्त अपूर्णता के रूप में जो है फलती फूलती भी रहती है। तो देखा जाए तो इसमें काफ़ी नुकसान भी है। तो इसको साइंस को इस बात को समझना चाहिए कि इसके चक्कर में दूसरे जीव भी अपने प्राण को त्याग देंगे। तो इसलिए इसको अभी प्रमाणित नहीं मिला है और इसको जो है इस्तेमाल भी करने की मनाही की गई है, क्योंकि ये जिसको लगाया जाता है उस समय से ये विष उत्पन्न कर लेने लग जाता है और कई मानने में जो दूसरे जीव होते हैं उनको भी नष्ट करने के लिए अपना योगदान दे देता है। तो ये कई मानने में थोड़ा सा खतरनाक है। यही बात जो है साइंटिस्टों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। आगे जो है हमारा दोस्तों ट्रांसजेनिक एनिमल। तो ट्रांसजेनिक एनिमल क्या है देखते हैं। Transgenic animal. There is the most important topic here. Transgenic animal. Their genes for a growth hormone from the cattle has been studied through the genetic engineering to produce a large fish, pigs, and some other animals. There is the transgenic goats and can produce a blood clotting protein in their milk. And this may be useful for the children suffering from the disorder such as the hemophilia, in which the blood does not be clot. There is a most important for here. The one fact is the most important here. Our genetic engineering offer a wide scope for transferring genes from one organism to the another, such as a plant is a microbe, animal to the microbe. This is a gene transfer and not be possible by other techniques like hybridizations. However, our DNA is a technology is not without a problem. One is a dangerous that is a accidentally is a internationally is a pathogens may be produced and misused as in the biological is a warfare. Another strict guidelines has been to the laid down for a research in a genetical engineering. There is the most important here, and the next is a biosafety. There is biosafety is here. There is a biosafety. There is a public concern about their possible host and the using of genetically modified means GM is organized as a food. You already know that is a GM is organized one that is a content genes. From there is another species, for example, a BT brinjal as a GMS brinjal has genes added to be genomes of brinjal from another species by genetic engineering, which help it to be protect itself from one of its pests. The salmonella fish has been genetically modified by adding to the more active salmon growth hormone genes. But the concern there about the safety of GM food to human and other animals are also to be environment. And as I said earlier, 2000 several countries agree to the biosafety protocols by which is the safety of using GM food is a first ascendings before using them. In our countries, as Department of Biotechnology is a compliant with the rules of Environment Protection Act EPA has to be considered to granted a permission for the research and use of any GM organism and after testing it is safety to human and other animals and environment. The next is biopiracy. Biopiracy is here. The biopiracy is mean to the theft. Is a biopiracy is mean to the protecting to the exporting or biologically resource of another country without begin to the authorities to the given to the required compensation. For the example, a rich development country may be patent to the biosource such as the medicinally plant to traditionally knowledge of regarding to the biosource of developing country. Sometimes is useful to biomolecules extract
from a plant growing in another country may be a patent and use of the commercially benefit. Even genes from the foreign plants and animal may be a patent. Example: USA is granted a patent from the Isazom plasma and basmati rice grow in India. The next is the most important is a bio patents here. A patent is a officially document is a portions of the document permit their holder to use of sell his her invention. The duration of the patent is 20 years and is a patent hold has to be obtained a license on contained dissoluble terms and condition. The India's Patent Act of 1970 is provide to patent from a invention to use of food. A medicine and drugs is allowed to the semiconductor, etc. In India, duration of patent for a 40-year expect of food and is a paraceuticals, which is only for a 7 year. There is the most important here. The patent is granted to be an inventor, so that is inventor is not be used by the other or commercially purpose. A patent may be granted for on invention to the discover to the improvement on earlier invention and process of genetical of patent and the concept of design. There is a most important patent is granted here. The first is on invention of the or discover and the improvement of the earlier invention. There is second and third is a process of genetics and patent, and the fourth is a concept of design. There is a most important here. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण बात आ गया है कि परजीवी जो है प्राणी यानी ट्रांसजेनिक एनिमल में आखिर क्या बात थी और क्या साइंटिस्टों ने यहाँ पर रिसर्च किया था। कहते हैं मवेशियों से प्राप्त जो वृद्ध हार्मोन ग्रोथ हार्मोन के जीन के आनुवांशिक अभियांत्रिक द्वारा प्रविष्ट कराकर बड़ी मछलियाँ सूअर अथवा अन्य जीव उत्पन्न किए जा चुके हैं। परजीवी बकरी अपने दूध में रुधिर का थक्का बनाने वाले प्रोटीन उत्पन्न कर सकती है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहता है, क्योंकि यहाँ पर दूध में देखिए कि यहाँ पर थक्का बनाने के लिए रुधिर के लिए उपस्थित होती है प्रोटीन। ये हेमोफीलिया से पीड़ित बच्चों के लिए जिनके रुधिर थक्का नहीं बनता है लाभदायक सिद्ध हो सकता है। देखिए आज जेनेटिकल मटेरियल के द्वारा कितनी जो है लाभदायक चीज़ों का जो है निर्माण किया जा रहा है, यानी इससे जो है कोई भी बच्चा हेमोफीलिया से ग्रसित होगा, अगर उस बकरी के दूध पिलाया जाता है तो उससे क्या होगा, उसको उस बीमारी से कई मायने में राहत मिल सकती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना कि बहुत सी चीज़ें की ऐसी खोज हुई है जो लोगों के कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध भी हुआ है। अगर देखा जाए एक फैक्ट की बात तो कहते हैं कि आनुवांशिक अभियांत्रिक में एक जीव से दूसरे जीव जैसे पादपों से सूक्ष्म जीवों में, प्राणियों से सूक्ष्म जीवों में जीन के हस्तांतरण को व्यापक क्षमता है। ये तो बात जर्नल से ही है कि पादपों से सूक्ष्म जीवों में, प्राणियों में जिसमें जीवों में जो स्थानांतरित होती है वो व्यापक रहती है, और इस प्रकार का जीन स्थानांतरण अन्य तकनीक जैसे संकरण द्वारा संभव नहीं है। यद्यपि आरडीएनए प्रौद्योगिकी समस्या रहित नहीं है। यह खतरा है कि दुर्घटनावश या इरादत रोजनारक उत्पन्न हो जाएं और उनका जो है दुरुपयोग हो, जैसे जैव युद्ध में हुआ था। कहते हैं जैव युद्ध जो है बहुत ही खतरनाक है। इसका जो है अभी इस समय लोगों को देखने को मिला है, जो कि कोरोना वायरस के रूप में था। कहते हैं जैव जो युद्ध होती है इतनी खतरनाक होती है जिसमें इंसानों को बचना संभव नहीं होता, क्योंकि ये वायु द्वारा और पानी द्वारा बहुत आसानी से फैलते हैं। जैसे आप कोरोना वायरस को भी जान चुके होंगे, और ये भी एक तरह से देखा जाए तो बायो वेपन के रूप में यूज़ किया गया था। अंततः आनुवांशिक प्रौद्योगिकी में अनुशासन के लिए कठोर निर्देश तय किए जाने की ज़रूरत है। देखिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि अगर हम आनुवांशिकता खोज करते हैं या बायो वेपन के रूप में कोई चीज़ का निर्माण करते हैं तो इसमें कठोरता से नियम को लागू करने के लिए हर देश को ज़रूरी है। नहीं तो जापान जैसे देश जो है ऐसे कोरोना वायरस की रिसर्च करेंगे और पूरे विश्व को जो है त्राही त्राही मचाने के लिए जो है विवश हो जाएगा। तो ये सब सही नहीं है। इस पे जो है पूरे विश्व को इस पे समस्याओं पर समाधान की आवश्यकता है। कहते हैं हमारे लिए बायो जो है जो रिसर्च हो रही है कई मानने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इम्पोर्टेंट तब साबित होता है जब उसका सही उपयोग किया जाए। अगर गलत उपयोग किया जाएगा तो वो कभी भी जग कल्याण और मानव जाति के लिए सही नहीं होगा। जैसे आपको भी मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना हो सके व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, जिससे ज़रूरतमंद बच्चों को पहुँचे, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से बच्चे जो है मुझे थैंक्स भी बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाते हो और उनको जो है उनके मनपसंद टॉपिक उनके ही लैंग्वेज में, उनके ही भाषा में और उनके ही समझ में प्राप्त हो जाता है। तो कहते हैं ये सोने पर सुहागा उनके लिए होता है। तो सोचना नहीं है दोस्तों, विचार नहीं करना है। कहते हैं ये तो विश्व की बात थी, लेकिन ये तो जर्नल आपके लिए है। अगर आप
अग्रसर रहोगे, उसी प्रकार त्रिपाण सेंटर भी आपके लिए सदैव अग्रसर रहेगा। आगे हमारा है जैव सुरक्षा। कहते हैं अगर देखा जाए जैव सुरक्षा के बारे में तो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीएम यानी जीवों के भोजन के रूप में प्रयोग करने में संभावित जोखिम के बारे में लोगों के बीच चिंता बनी हुई है, क्योंकि ये काफ़ी समस्या भी उत्पन्न कर रही है। आप जानते ही हो कि जीएम जीव वह होता है जिसमें किसी अन्य जीव के किसी जीन का समावेश होता है। अगर उदाहरण के रूप में हम देखें तो बीटी बैगन को जो है देख सकते हो, जो कि जीएम बैगन है, जिसमें आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा किसी अन्य प्रजाति के जीन उसके जीनोम में समाविष्ट कर दिए जाते हैं, जिससे वह अपने ऊपर आक्रमण करने वाले पीड़कों में से एक पीड़क को आक्रमण से अपनी सुरक्षा कर लेता है। ठीक है, अगर देखा जाए सालन मछली में अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय सालन के वृद्धि हार्मोन के जीनों में सुरक्षा जो होती है जीनों में समावेशित कर उसे आनुवांशिक रूप से रूपांतरित बनाया जा सकता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखता है। लेकिन जीएम खाद्यों के मानकों और अन्य जंतुओं के लिए पर्यावरण के लिए भी सुरक्षा के लेकर चिंता बनी हुई है। कहते हैं अगर देखा जाए तो सन 2000 के आरंभ में अनेक देश एक जैव सुरक्षा संधि के लिए सहमत हो गए थे, जिसके द्वारा जीएम खाद्यों के इस्तेमाल किए जाने में पूर्व उनकी सुरक्षा के बारे में निश्चित कर दिया जाए, जो कि बहुत मायने में ज़रूरी भी था, क्योंकि जैविक खाद्यों को अगर सुरक्षित करना है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ये बायो होती है, और बायो जो होती है काफ़ी खतरनाक भी होती है। अगर देखा जाए तो हमारे देश में जीएम जीव का उसके मानवों और अन्य जंतुओं और पर्यावरण के लिए सुरक्षित होने की जांच करने के बाद ही प्रयोग किया जा सकता है। इसकी जिम्मेवारी जो है जैव प्रौद्योगिकी विभाग की होती है, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम EPA के नियम के अनुपालन अनुसार जो है अनुसंधान के लिए अनुमति भी देता है। कहते हैं जीएम जीव का उपयोग तभी किया जा सकता है जब अन्य जीव, पर्यावरण एवं मानव की सुरक्षा हेतु सभी प्रकार से परीक्षण कर लिया जाए। देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और माननीय भी है कि जितना हो सके कोई भी अगर बायो हम रिसर्च करते हैं तो उसको हर जो है कसौटी पे खड़ा कर लेना अनिवार्य होता है, क्योंकि ये आगे चल के जो है मानव के लिए कहीं क्षति का कारण न बन जाए। तो इन सब बातों को जो है साइंटिस्ट देख के ही इसको जो है हमारे देश में लागू करते हैं। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात भी है और ज़रूरी भी है। दोस्तों उसके पश्चात हमारे समक्ष है जैव चौर्य यानी बायोपैरेसी। देखिए बायोपैरेसी भी उसी प्रकार की एक टेक्निक है। कहते हैं अंग्रेजी शब्द जो है पैरेसी यानी चौर्य का अर्थ है पैरेसी, ठीक है, और चोरी का कार्य यानी चौर्य। इस शब्द को पूर्व जो है बायो जैव लगा हुआ है। अंत इसका शाब्दिक अर्थ होता है जैव चौर्य। जैव चौर्य कहने का तात्पर्य है कि किसी देश के जैविक साधन बिना उसकी अनुमति के या बिना पर्याप्त मुआवजा प्रतिपूर्ति के जो है पेटेंट करा लेना या दोहरा करना। इसका मतलब दोस्तों समझ गए होंगे कि जैव चौर्य का मतलब है बायोपैरेसी। इसका मतलब है कि बायो चीज़ों को चोरी करना, यानी बिना अनुमति के दूसरे देशों से उसको चोरी कर लेना। ऐसे बहुत से बातें थी जिनको चोरी के इंजामों में दिखाया भी गया है। कहते हैं एटम्स बम सिर्फ अमेरिका के पास था, लेकिन ये परमाणु बम आज के समय में हर जगह हर देशों में मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई ना कोई लीकेज थी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थी, जिसको बायोपैरेसी के नाम भी दिया जा सकता है। कहते हैं कोई चीज़ अगर हमें ख़रीदना होता है तो उसको मुआवजा दे के फिर हम उसके फार्मूला लेते हैं। तो आज ऐसी चीज़ें बहुत हो रही है और ये देश कल्याण के लिए और जीवन के लिए सुरक्षित नहीं है। कहते हैं उदाहरण के लिए कोई धनी देश किसी विकसित देश के जैव साधन का जो है पेटेंट करा ले, ऐसे विकासशील देशों के औषधि पादप या पारंपरिक ज्ञान का जो है पेटेंट करा ले। प्रायः ऐसा होता है कि धनी देश ऐसे देशों को पादपों से प्राप्त लाभदायक जैव अणुओं को पेटेंट करा लेते हैं और वर्जनीय लाभों के लिए इनका उपयोग भी करते हैं। यहाँ तक कि विदेश पादपों और प्राणियों के जीनों का भी पेटेंट करा लिया जाता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत में जो है पारंपरिक रूप से उगाए जा रहे बासमती चावल के लिए जम प्लाज्मा पेटेंट स्वीकृत किया था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है। बात सही है कि बहुत से देश जो होते हैं बिना पूछे बिना इजाज़त के ही अपने देश में उस चीज़ों को पेटेंट करा लेते हैं। अगर अब देखा जाए साइंस में ही देखा जाए तो आपको पता है कि भारत में सुश्रुत जो थे उन्होंने जो है चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की किया, लेकिन ऐसा हमें किसी भी देश में नहीं मिला। लेकिन ये सारे चिकित्सा सर्जरी की बातें थी, आज हमारे देश से दूसरे देशों में ये काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी विकसित है। तो इसका क्या अर्थ समझा जाए, क्या समझा जाए, क्या इन्होंने यहाँ से इसको चोरी किया?
तो ये बायोपेरेसी जो होती है बहुत ही आम हो गई है और आने वाला समय में देखना ही खतरनाक भी सिद्ध होगा, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है बहुत ही सीमित रूप में और सुरक्षित रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं इसमें बहुत से रूल रेगुलेशन हस्ताक्षर भी हुए हैं, लेकिन इसका मान्यता सही रूप में सामने नहीं आया है। लोग इसका हमेशा जो है खंडन ही किए हैं। तो ये देश कल्याण के लिए और जग कल्याण के लिए और मानव कल्याण के लिए कदाचित उचित नहीं रहेगा। कहते हैं उसके पश्चात हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है जैप पेटेंट। देखिए जैप पेटेंट का मतलब होता है जो कानूनी तौर पे पेटेंट करवाया जाता है। एक पेटेंट सरकारी दस्तावेज होता है और दस्तावेज होने इसके स्वामी को यह अधिकार प्रदान किया जाता है कि अपनी खोज का प्रयोग कर सकता है और वो बेच भी सकता है। पेटेंट की अवधि 20 वर्ष की होती है और पेटेंटकारी को कुछ ये उचित शर्तों और दशाओं को आधार पर लाइसेंस प्राप्त कर लेना होता है। कहते हैं इंडियन पेटेंट एक्ट यानी 1990 के अनुसार इस पेटेंट का उद्योग खाद्य, दवा, औषधि और मिश्र धातु, अर्धचालक आदियों से संबंधित अनुप्रयोग के लिए किया जा सकता है। भारत में जो है पेटेंट की अवधि 14 वर्ष की होती है, लेकिन खाद्य और भौतिक मामलों में वह केवल 7 वर्ष को ही रखा गया है। कहते हैं खोजकर्ता को पेटेंट पर स्वीकृति किया जाता है ताकि उनके द्वारा किए गए खोज का वाणिज्यिक उपयोग कोई दूसरा न कर सके। पेटेंट नियम के लिए स्वीकृति किया गया है, यानी कुछ बातों को यहाँ पर रखा गया है। वो बातें जो हैं मेनली ये होता है कि अवलंबन या खोज यानी कैसे डिस्कवर हुई है, पूर्व किए गए अन्वेषण में सुधार यानी जो पुराने किए गए हैं उनमें हम सुधार किस प्रकार कर सकते हैं, या पेटेंट उत्पादन की प्रक्रिया या संकल्पन का डिज़ाइन। तो इन बातों पे जो है विशेष ध्यान दिया जाता है, तभी जाके जो ये आगे बढ़। Our next topic is the most important here is a polymerase chain reaction. The polymerase chain reaction is simply for PCR. Their PCR is the most important. You have already learned to the 22 is that a DNA. Lesson of 22 DNA is a polymerase is an enzyme responsible for a DNA replication or making a copy of a DNA molecules. In the techniques is called polymerase chain reaction, means PCR. There is a DNA polymerase is an enzyme used to repeatedly for making a many copy of a small fragment of DNA, and thus polymerase chain reaction or PCR help in making many copy of a small amount of DNA. There is a most important here shown in this figure. There a piece of DNA is amplified and the heat 97 Celsius to the stand of separated. There is a most important and added to the primer and the cool of 40 Celsius so that they are blind to a DNA. There is a most important, but first is come here the step in the PCR. There is a first step is a double helical. DNA molecules is a heated so that is a break up into two strands. And second is a primer are added and their DNA is a cooled. And third is a DNA polymerase is added and it's a presence of two single strand acquire complementary strand, and so two molecules of DNA are formed. And so in this figure there is a most important for here. There is a residing temperature of 70 Celsius. The is a thermostable polymerase enzymes and copy each strand starting at the primer. There is a goes to the repeated process until enough DNA is made. There is a polymerase chain reaction diagram is completely understand for you. And the next is, and these steps are repeated to get a multiply copy of DNA, and this are days the DNA polymerase from a bacterium leaving the hot spring is called Tuck polymerase is used a PCR machine. The DNA amplified by the PCR can be used a various technique. दोस्तों हमारे समक्ष जो है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है, वो है पोलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया यानी पोलीमरेज चेन रिएक्शन। ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम पहले जो है हमने 22 चैप्टर किया था, 22वां चैप्टर, उसमें हमने डीएनए पोलीमरेज के डीएनए प्रकृति या डीएनए अणु की प्रतिलिपि निर्माण के लिए उत्तरदायी जो है प्रक्रिवन की विषय में हमने चर्चा किया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था। इसमें हमने जाना था कि कैसे जो डीएनए प्रतिलिपि बनाती है और कैसे जो है ये आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर पोलीमरेज चेन रिएक्शन जो है कई मानने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है ये कॉपी करती है, और कॉपी करने का अर्थ क्या होता है कुछ स्टेप से आप यहाँ समझ सकते हो। कहते हैं सबसे पहली बात तो यही आता है कि डीएनए पोलीमरेज प्रक्रिया की डीएनए के एक छोटे से खंड को अनेक प्रकृतियाँ यानी प्रतिलिपियाँ यानी कॉपी प्राप्त कर सकते हो। छोटे से डीएनए से हम
कई प्रतिलिपियां प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है कहीं भी क्राइम होता है तो हमें अधिक मात्रा में कोई भी चीज़ नहीं मिलता है, तो वहाँ पर छोटी छोटी मात्राओं में हेयर मिल गया, ब्लड के सैंपल मिल गए, नाखून मिल गए, तो इन्हीं से जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के रिगार्डिंग इसको आगे जो है बनाया जाता है और आगे जो है इस पर रिसर्च पे लगाई जाती है। तो ये बनाना जो है प्रतिलिपियां बनाई जाती है और इसके बारंबार प्रयोग भी किए जाते हैं, कई बार इसको प्रयोग में भी लाया जाता है, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। इस तकनीक को जो है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया हिंदी में कहते हैं, यानी पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। और इस प्रकार जो पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को अगर सिंपली वर्ड में देखा जाए तो पीसीआर भी कहते हैं। ठीक है, ये डीएनए की छोटी मात्रा के अनेक प्रतिलिपियां बनाने में सहायता करता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे होगे तो डायग्राम में भी इस बात के लिए चर्चा की गई है। देखिए यहाँ पर डीएनए का टुकड़ा परिवर्तित किया हुआ है और इसको 95 तक सेल्सियस तक गर्म करके दोनों रेडिकल अलग हो जाते हैं और प्राइमर डाला गया और जो है 40 सेल्सियस तक ठंडा किया गया है, जिससे यह डीएनए में जुड़ जाए, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है। अगर देखा जाए तो कुछ हमारे यहाँ स्टेप है जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट और मान्य हैं। तो पहला स्टेप तो हमारा यही है कि पीसीआर में निम्न चरण होते हैं कि दोहरी कुंडलित डीएनए अणु का निर्माण किया जाता है। दूसरा है कि दोहरी कुंडलित में जो होती है हमारा कि प्राइमर मिले जाए तो डीएनए ठंडा किया जाता है। तो यहाँ दोनों ही बात काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि हम दोहरी कुंडलित डीएनए अणु के जो अगर गर्म किया जाता है तो उसमें 2 तंतुओं में टूट जाता है, जैसे कि हमने चित्र में भी देखा। और दूसरा जो है प्राइमर मिलाया जाए तो इसमें डीएनए ठंडा किया जाता है। तो इसका जो है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया यहाँ पर आपको दर्शाया गया है, जिसमें डीएनए बन जाने तक इसे दोहराया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तकनीक है, जिसमें कहीं भी साइंस के जो है खोज में बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी स्थान रखेगा। और कहते हैं आजकल बहुत से क्राइम भी होते हैं, उसमें भी जो है पीसीआर का बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान रहता है। और इसमें जो तीसरी बात आती है वही ये आता है कि डीएनए पॉलीमरेज जोड़ा जाता है और इसकी उपस्थिति में 2 एकल तंतु को एक पूरक तंतु प्राप्त हो जाता है। यानी जब डीएनए के हमें छोटे से टुकड़े मिलते हैं तो इसको हम पॉलीमरेज पीसीआर के द्वारा जो है इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं और एक पूरा डीएनए बनाने की कोशिश करते हैं, और इस प्रकार डीएनए के 2 अणु बन जाते हैं। और इस प्रकार जो है 2 अणु बन जाने के बाद हमारे लिए कोई चीज़ को रिसर्च करना बहुत ही आसान रह जाता है। कहते हैं अगर डीएनए के अनेक प्रतिलिपियाँ प्राप्त करने के लिए इन चरणों को दोहराया जाता है, लेकिन आजकल सूत्रों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया से प्राप्त डीएनए पॉलीमरेज, जिसे हम टैग पॉलीमरेज यानी टैग पॉलीमरेज के नाम कहा जाता है, को हम पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मशीन में प्रयोग किया जा सकता है। यानी आज के समय में देखा जाए तो ये मशीन के रूप में बहुत ही सुचारू रूप से उपलब्ध रहती है। अगर देखा जाए तो पीसीआर द्वारा प्रयुक्त डीएनए अनेक तकनीकी विश्लेषण और जो है क्लोनिक्स में प्रयोग किया जा सकता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, तो इसी कहते हैं दोस्तों डीएनए जो पीसीआर के बारे में आपने जाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो आज के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी के रिगार्डिंग जो है हमारे समक्ष आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। The next topic is most important are DNA fingerprinting. DNA fingerprinting is the most important. Here, like our fingerprint is a repeated sequence in our DNA are unique. You must be have heard that is the police the lifted fingerprint from two scenes of crime to identify the is a culprit is case of rape. The culprit is a case of the rape and thief of murder. There is a most important identity of culprit on a case of rape and thief and murder. In 1984, Alice Zelfers is the geneticist is the invention of techniques could be a destructed their DNA of person from that another and called to the technique of genetical fingerprinting of DNA fingerprinting, and this techniques is now used for scientific investigation of the crime. And for example, identify the correctly their accused it a rape and murder to solve the paternity disputes and find out who their actually father of a child is. There is the most important here. There is a DNA fingerprinting can be done from a very small amount of DNA and which are taken about of teeny drop of blood, semen, hair follicles and tooth bulbs, etc. The pick up from two scenes of crime, and these steps techniques are here. The first is step here, a DNA isolated from a blood, semen, etc. and is a quantity is increasing through the PCR and their length of this DNA piece vary from a person to the person because of contain or repeated a sequence of nucleotides DNA and which vary.
and the DNA pieces are separated from the each other according to size and charge with the help of techniques called to the electrophoresis. And the pattern you can see in the figure given below the unique of each person. There is a most important for the hair diagram. There is a unique structure. They are matched to the each other. There is a under the carpet. And in a crime, there is maybe therefore as a subsected is there are DNA fingerprint is carried out and compared with that of the DNA picked up from to the scenes of crime, and the one that is a match the DNA print of one of their suspect in the actually culprit. There is a most important things here. कहते हैं दोस्तों फिंगर प्रिंटिंग जो है कई मायने में इम्पोर्टेंट है और आज के समय में एक वरदान है, क्योंकि इससे हम बहुत सी बातों को जो है अनजाने चीज़ों के बारे में भी हम जान जाते हैं। लेकिन ये संभव तभी हुआ जब इसको जो है साइंटिस्ट जो है एलेक जेफरीज ने जो है 1984 में खोज किया, और ये आज के समय में जो है फोरेंसिक साइंस के लिए एक वरदान सिद्ध हो गया। चाहे कोई भी रेप हो, चाहे मर्डर हो या किसी प्रकार की घटना हो, इसमें डीएनए का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रहता है और फिंगर प्रिंटिंग का स्थान तो रहता ही रहता है। ठीक है, तो कहते हैं हमारे फिंगर प्रिंटिंग उंगलियों के छाप के समान हमारे डीएनए में पाए जाने वाले पुनरावृत्त अनुक्रम यानी रिपीटेड सीक्वेंस होती है जो अद्वितीय होती है। आपने सुना ही होगा कि पुलिस अपराध के स्थान से फिंगरप्रिंट उठाती है और इसकी सहायता से बलात्कार, चोरी या हत्या के अपराधी का जो है पता बहुत आसानी से लगा लेती है। कहते हैं जो खोज हुई थी जो एल्फ्रेड जेफरीज ने की थी, अनुवांशिक विभेद थे यानी अनुवांशिक जेनेटिक्स के ही साइंटिस्ट थे, एक तकनीकी विकसित किया जिसकी सहायता से अलग अलग लोगों के डीएनए के बीच में विभेद किया जा सके, और उन्हें इस तकनीक को अनुवांशिक फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का नाम से पुकारा। यह तकनीक अब अपराध के वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयुक्त होती है। उदाहरण के तौर पर बलात्कार या हत्या के मामलों में ये पत्रता के झगड़े को हल करने में भी, यानी मान लीजिए किसका बच्चा है ये भी जानने के लिए ये फिंगर प्रिंटिंग जो होती है एक वरदान सिद्ध हो जाता है, क्योंकि इसमें कौन पिता होता है वो हम फिंगर प्रिंटिंग से पता लगा लेते हैं। अब आखिर फिंगर प्रिंटिंग में होती कौन कौन सी चरण है ये जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि फिंगर प्रिंटिंग में आखिर कौन कौन सी बातों को सम्मिलित किया जाता है। चलिए देखते हैं कि फिंगर प्रिंटिंग में कौन कौन सी बातें जो है सम्मिलित होती है। कहते हैं अगर देखा जाए तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अति अल्प मात्रा में डीएनए जो कि खून की छोटी सी बूंद हो सकती है, शुक्राणु हो सकती है, रोमकूप हो सकती है, दंत मज्जा से प्राप्त किया जा सकता है, को अपराध के स्थान से उठाया जाता है। और इस तकनीक के चरण जो होते हैं कुछ इस प्रकार होते हैं। पहला तो हमारा यही चरण होता है कि डीएनए का खून, वीर्य आदि से पृथक किया जाता है, क्योंकि इन सब चीज़ों में जो होती है डीएनए प्रेजेंट होती है। इसकी मात्रा जो है पीसीआर द्वारा बढ़ाई जा सकती है, यानी पीसीआर के रिगार्डिंग जैसे हमने पहले ही पढ़ा है पॉलीमर चेन रिएक्शन के रिगार्डिंग छोटी सी मात्रा को हम कई गुना बढ़ा सकते हैं, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक था जिसके विषय में हमने पढ़ा था। ठीक है, इस डीएनए खंड की लंबाई डीएनए में विद्यमान न्यूक्लियोटाइड्स के विशेष पुनरावृत्त अनुक्रम के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, जो कि जर्नल सी बात है। वैद्युत कण संचलन यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक द्वारा डीएनए के खंडों को इनकी लंबाई आवेश का अनुसार जो है पृथक किया जाता है। जैसे कि आप चित्र में भी देखोगे कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिसकी संरचना भिन्न भिन्न होती है। जैसे आपने देखा होगा, आप देखो पहले में कितना डिफरेंस है, दूसरा में देखो कितने डिफरेंस है, इसी प्रकार सभी में डिफरेंस है। और मान लीजिए ये हमारे पास 5 व्यक्ति जो हैं करपिट हों या 6 व्यक्ति करपिट हैं, अगर इनमें से अगर किसी बच्चे के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाए तो अगर बच्चे के फिंगरप्रिंटिंग जिसके फिंगरप्रिंटिंग से काफ़ी हद तक मैच करेगा वही उसका फादर होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक रहता है और ये बहुत ज़रूरी भी रहता है। और अपराध में भी ऐसे ही होता है कि मान लीजिए कई व्यक्ति अपराध के दोषी हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ एक व्यक्ति अपराधी है, तो उसमें से सभी व्यक्तियों के फिंगरप्रिंटिंग ली जाती है। ठीक है, और उसका फिंगरप्रिंटिंग जो उस व्यक्ति से मिला है जिसका हत्या हो गया या उसके साथ बलात्कार या कुछ भी हुआ, तो उनसे जो है ये फिंगरप्रिंटिंग मिलाई जाती है और जिसके साथ मैच कर जाता है वही व्यक्ति जो होता है अपराधी सिद्ध हो जाता है। तो यही जो है यहाँ डायग्राम में समझाने की कोशिश किया गया है। कहते हैं अगर देखा जाए तो एक अपराध में 3 या 4 संदेह हो सकते हैं, इसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है और उसे अपराध के स्थान से लिए गए डीएनए से तुलना भी किया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया है। जिसका डीएनए मेल
मेल खा जाता है वही व्यक्ति जो है अपराधी साबित होता है और वही अपराधी बन जाता है। तो ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये जो फिंगर प्रिंटिंग होती है, आपने देखा होगा फिल्मों टीवीओं में भी देखा होगा, कई जगह तो इसको गलत भी उपयोग किया जाता है कि अपराध कोई और व्यक्ति करता है और दूसरे व्यक्ति का फिंगर प्रिंट ला के यहाँ पर छोड़ देते हैं, जैसे वो व्यक्ति अपराधी सिद्ध हो जाता है। तो ये कहते हैं ना, कुछ टेक्निक बनी है अच्छे के लिए, तो कुछ जो है लोग अपराधी जगत के लोग जो हैं इसको गलत उपयोग करके जो है आज साइंस को भी उलझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि फिंगर प्रिंटिंग जहाँ इतना इम्पोर्टेंट है वहाँ अपराधी भी आज बहुत तेज और चालाक हो गए हैं। The next topic is genomic. Genomic is the most important topic here. Genomes is a collective term of a full set of gene is a organism. Genes are pair and so genome is mean to all the genes present in the haploids mean n set of chromosome. Genomics is the analysis of the genome data that is a finding out of functionally nucleotide sequence genes in the DNA of organism. Here showing this figure. So here showing this diagram, there is a most important diagram here. There is a karyotypes of showing the chromosome of male and female. Here the human, there is a most important chromosome in the karyotypes showing this figure. The genomes of E. coli is a bacterium, the yeast and the Saccharomyces and some other kind of organism is already known is Alpha-V6 Drosophila. They are showing this diagram is the most important here. Here show the human genomes. There is the most important, and here show the defected in human beings. There are chromosomal and there are condition of their breast cancer, fascias, hemolysis and the DNA immunodeficiency as a family process of the clone, cystic fibrosis, multi-exoded and disorder of cartilage and bone, malignancy, melanoma is the most important. There are genomes in here, show in this figure. This figure is already shown there is a human genome in there is a some defected gene. There is a large number of diseases in a genetical in genomes. There are human genomes has been to the mapped in the 2003 and the human have a 23 pairs of chromosome. There is a sequence of 2n is equal to 46 and the human genomes has a 3 into 10 power 9 nucleotides and the base pair of, and if the sequence of nucleotide genes is known, it will be process of is a pinpoint and defected genes shown in the figure is a box. The identify genes for the correction of the genetic disorder and their gene therapy genetical counseling. There is a most important topic here. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको जीनोमिक कहा जाता है। देखिए, जीनोमिक एक प्राणी में पाए जाने वाले सभी जीनों के समुच्चय के लिए प्रयुक्त एक समूहवाहक शब्द है जिन्हें जमीक युक्त होते हैं और इसलिए जीनोम का तात्पर्य जीनों जो है गुणसूत्रों के अनुगणित समुच्चय से विद्यमान सभी जीनों से माना जाता है, जिसमें हर चीज़ जो है इम्पोर्टेंट अपना स्थान रखता है। अगर आप यहाँ डायग्राम देख रहे होगे तो इसमें जो है पुरुष गुणसूत्र और महिला गुणसूत्र दर्शाया गया है। कहते हैं इन्हीं जीन का जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्रोमोसोम गुणसूत्र जो होते हैं कई मायने में इंपॉर्टेंट होते हैं और इसी से जो है सारे आधार तैयार होता है। तो ये जीन जो है और ये गुणसूत्र जो हैं कई मायने में इंपॉर्टेंट होते हैं। कहते हैं जीनोमिक जो है जीनोम्स आंकड़े का विश्लेषण है, अर्थात कहते हैं किसी जीव के डीएनए में जो है कार्यात्मक न्यूक्लियोटाइड्स अनुक्रम जीनों की जो जानकारी प्राप्त होता है। अगर हम देखें, पहले भी हमने देखा था ई कोलाइड्स में जिसमें जीवाणु जो है सिक्रोमाइसेस में जो है खमीर अथवा कुछ अन्य जीव जैसे कि सेरावेसोफिलस एंड ड्रेसोफिला जो फल मक्खी का जीनोम्स पहले से ही हमें ज्ञात है और हमने जाना भी था कि इसमें किस प्रकार जो है इंपॉर्टेंट रखता है, यानी ई कोलाइड के बारे में हमने पूरा विस्तार से जाना था। तो कहते हैं गुणसूत्र जो है अपना विशेष स्थान रखता है और गुणसूत्र से ही आगे बहुत सी क्रियाएँ संभव हो पाता है। यहाँ पर एक विस्तृत डायग्राम आपके समक्ष प्रस्तुत है। देखिए, इसमें जो है दोषपूर्ण जीनों की स्थिति दर्शाया गया है कि मानव जीनों में कितने प्रकार की बीमारियाँ यहाँ उपस्थित होती है। तो आप देख के हैरान ही हो गए होंगे कि इतने सारे जो होते हैं जीनोम्स के रिगार्डिंग होने वाले डिसऑर्डर हैं। तो ये काफ़ी विकार जो है काफ़ी खतरनाक होता है इंसानों में। तो ये आप समझ सकते हो कि क्लोन फ्लेमिंग हो, यहाँ कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, ठीक है, रक्त कोई भी हो या चेस्ट रोग, लिपिड्स हो, तो सारी बीमारी जो है जीनोम्स के वजह से ही होता है। तो इस डायग्राम को देख के आप खुद भी हैरान होंगे कि इतने सारे दोष जो होते हैं जीन के वजह से होता है। तभी कहते हैं ना, कोई भी कदम उठाओ सोच समझ के उठाओ, क्योंकि इससे हमारे जीन्स पे जो है काफ़ी प्रभाव डालता है।
अगर 2003 में अगर देखा जाए तो मानव जीनोम का चित्रण मैपिंग हो चुका था और मानवों में जो है 23 जोड़े जो होती गुणसूत्र यानी N2N जो 46 पाए जाते थे मानव जीनोम में 3 × 10⁹ न्यूक्लियोटाइड बेस युक्त होते हैं और ये न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं का अनुक्रम जीनोम ज्ञात हो तो दोषपूर्ण जीनों की जो है इंद्रित करना संभव हो जाता है। जैसे कि वक्ष में आपने चित्र में भी दर्शाया होगा, ठीक है, इस चित्र में भी दर्शाया गया था। और त्रुटि के ठीक करने वाले अनुवांशिक विकारों को ठीक करने वाले जीनोमों की पहचान हो सकती है तथा अनुवांशिक परामर्श भी दी जा सकती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दोषपूर्ण जीनों को इंद्रित करना संभव हो जाएगा और जो त्रुटियाँ होगी उससे जो है ठीक भी किया जा सकता है। तो ये कई मायने में जीनोम जो थी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। अब जो हमारा टॉपिक है अनुवांशिक परामर्श यानी काउंसलिंग के बारे में देखते हैं क्या है। The next topic is most important here. There is a genetics is a counseling. Their genital counseling is the most important here. You have earlier learned about the dominant and the recessive genes. And if child receive a dominant gene from one parent and receive from to the other parents is a heterogeneous condition. The receives or genes does not be expressed itself, and the received genes get expressed only when they are in the homogeneous condition. That is, both genes of pair inherit from to the parent and receive. And you are probably is appreciate which is a marriage between a close relation. And term is a consequences is marriage is a discourage and began to relate it. Both parents may be passed down to defective genes which may be present in a family. The most defective genes, their case a genetical disorder as receive. And when both genes appear in the child are defective in the child is born with a genetical disorder. So if your couple wish to, then now there is chance of their child getting a particular disorder present in their family. They have to go to the genetical counselor. A genetical counselors mean to the advice given regarding a genetical disorder. So that is a couples now whether to have one more children in their first children is suffering from genetical disorder. And the genetical counselor has a very good knowledge of human genetical and can predict their chance of a genetical defect in a family. There is a show in this picture. There is the most important the circle and females and the square of the male fill the circle and square are affected individuality of circle and a square are normal individual. There is a more important here the pedigree chart. The pedigree chart is here is the most important. The pattern of the inherent or particular traits is a feature among the human and identified by their method of pedigree analysis. The pedigree is their diagrammatic representation of relationship showing the particular traits in a family. The genetical counselor is a preparer of pedigree chart and can then advise to accordingly see the pedigree chart and the study of square circle explained. There is the most important of pedigree chart here. जैसे कि दोस्तों हमें पता है कि अनुवांशिक परामर्श, देखिए अनुवांशिक परामर्श से पहले एक बात मैं आपको भी परामर्श लेना चाहता हूं और करना चाहता हूं ये कि जितना हो सके ये वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि तिरपान एसडी सेंटर का यही उद्देश्य है कि हर एक बच्चे तक पहुंचे और उनको लाभांतरित करें और इस कार्य में आप जो हो एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है हम तिरपान एसडी सेंटर के लिए एक रास्ता बन सकते हो। दोस्तों ये बात बहुत ज़रूरी है क्योंकि तिरपान एसडी सेंटर जो है इसको हिंदी इंग्लिश में इसलिए ला रहा है क्योंकि तिरपान एसडी सेंटर को पता है कि जो बच्चे हिंदी मीडियम होते हैं उनको टीचर जो होते हैं डीमोटिवेट करते हैं, लेकिन तिरपान एसडी सेंटर ऐसा नहीं चाहता है। उन बच्चों को भी आगे लाना चाहता है जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने मर्जी से जीवन आगे जो है अच्छे से अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं, अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो ये तभी संभव होगा जब वो अपनी इच्छा से जाएंगे, ठीक है। लेकिन उनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है। तो इससे तिरपान सेंटर जो है ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको जो है बहुत ही सुचारू रूप से समझाने की कोशिश करता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए रहता है। इसलिए आपको अधिक नहीं करना है, उन बच्चों तक नहीं जाना है, सिर्फ आपको एक ही कार्य करना है कि इसके जो लिंक है उसको कॉपी करके व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। अब सोचिएगा कि आप ऐसा क्यों कीजिएगा, क्योंकि मैं तो आप वीडियो देख लोगे और छोड़ के चले जाओगे। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना अपना ही मंतव्य पूरा करना किसी भी इंसानों के लिए सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि
सबका सहायता सबका ज़रूरी है, क्योंकि उन बच्चों को भी इस वीडियो क्या पता आपके माध्यम से प्राप्त हो और वो अच्छे से अच्छे डॉक्टर बन जाए, कुछ अच्छे। देखिए यहाँ पर सवाल ये नहीं उठता कि प्रोनाउंसिएशन कैसा है। कहते हैं एक आम इंसान के पास जाओगे ना तो आम इंसान का प्रोनाउंसिएशन ऐसा ही होता है, क्योंकि हम आम इंसान हैं, हम इंडियन हैं। लेकिन वही अगर आप अंग्रेज़ों के पास जाओगे जहाँ पर आपको एक वर्ड भी समझ में नहीं आएगा। कहते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, वो सब इंग्लिश मीडियम ही रहते हैं, तो उनका पढ़ाया हुआ वर्डिंग भी आपको कई मायने में समझ नहीं आता है। लेकिन त्रिपाठी सेंटर जो है बहुत ही आसान और देसी लैंग्वेज में रहता है, जो कि आपके लिए समझना और सोचना भी बहुत ही आसान हो जाता है। तो कहते हैं बड़े बड़े हाई फाई ट्यूशन और क्लासेस लगाने से अच्छा है कि त्रिपाठी सेंटर से जुड़ जाइए। और कई बच्चों ने मुझे ये भी कंप्लेंट किया है कि ये वीडियो उन तक नहीं पहुंच रहा है और बहुत लेट पहुंच रहा है। तो ये बात मैं ऐसा नहीं सुनना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप जितना हो सके अपनी तरफ से कार्यशील रहो, यानी अपना जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ, जिससे आपके न जाने अनजाने में कोई बच्चा जो हो इस त्रिपाठी सेंटर से जुड़ जाए और उनको जो हो फ़ायदा पहुंच जाए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये काउंसलिंग में भी यही बात आता है कि अनुवांशिक परामर्श। देखिए यहाँ पर जो काउंसलिंग की जाती है आनुवंशिकता के लिए, आपको अभिभावक जो अप्रभावित जीनों के बारे में पहली जानकारी है। यदि एक शिशु एक जनक से प्रभावित दूसरे जनक से अप्रभावित जीन प्राप्त करता है, आपने देखा होगा कि एक बच्चे में जो है कई प्रकार के डिसऑर्डर होते हैं, तो वो क्या करते हैं आनुवंशिक परामर्श से बात विचार करते हैं। तो वो वही बात को यहाँ दोहराते हैं कि अप्रभावित जीन जो होते हैं अव्यक्त नहीं होते हैं और अप्रभावित जीनों की अभिव्यक्ति केवल संविरोध स्थिति में ही होती है, अर्थात जब युग्मज दोनों जीन अप्रभावी है। आप संभवतः इस बात का महत्व समझेंगे कि निकट संबंधियों के बीच विवाह संबंध को क्यों मना किया जाता है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि सगे संबंधियों के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। संबंधी होने पर दोनों जनक परिवार में विद्यमान दोषपूर्ण जीन अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाती है, ठीक है। शायद ये बात आप लोगों को समझ नहीं होगी कि हमें कभी भी अपने रिश्तेदारों से शादी या मैरिज नहीं करना चाहिए, रिलेशन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे जन्म लेंगे उसमें उन्हीं के बीमारी और जो है डिसऑर्डर वो ट्रांसफ़र आगे होती रहेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इससे क्या होता है कि अधिकतर आनुवंशिक विकार उत्पन्न करने वाले दोषपूर्ण जीन अप्रभावी होते हैं। जब एक जोड़े के दोनों जीनों का दोषपूर्ण हो तो शिशु जो है आनुवंशिक विकार के साथ उत्पन्न होता है। अंत यदि पति पत्नी अपने परिवार में विद्यमान किसी आनुवंशिक विकार के अनेक शिशु में पहुंचने की संभावना के बारे में जानती है, तो उन्हें जो है आनुवंशिक सलाहकार से परामर्श करने की आवश्यकता होती है। और देखिए जो भी आनुवंशिक परामर्शदाता होते हैं, सलाहकार होते हैं, कुछ इस तरह से जो है वंशावली आरेख चित्र बनाते हैं और इस आलेख चित्र से वो समझाने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार जो है आप जेनेटिकल डिसऑर्डर के शिकार हो सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत ही सुचारू रूप में दिखाया गया है कि अगर मान लीजिए जो जेनेटिकल के डिसऑर्डर होंगे तो आगे जो है पीढ़ियों में स्थानांतरित 100% होगा। जो यहाँ पे डिग्री चार्ट जो है बिल्कुल क्लियर दिखाने की कोशिश किया गया है, जिसमें हर बात स्पष्ट रूप से आप देख सकते हो। तो कहते हैं आगे आनुवंशिक सलाहकार को मानव कहते हैं आनुवंशिक का जो है बहुत ज्ञान होता है, क्योंकि उनको आनुवंशिक के विषय में उन्होंने पढ़ रखा होता है और उनको नॉलेज भी होती है कि आनुवंशिकता कैसे आगे बढ़ती है। और वो परिवार में आनुवंशिक दोष की भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको पहले ही पेडिग्री चार्ट से पता लग जाता है कि आने वाला बच्चे में कौन कौन से दोष होंगे। मानवों में एक विशेष लक्षण की वंशागति के अनुमान को वंशावली विश्लेषण की विधि द्वारा पहचाना जा सकता है। वंशावली एक परिवार में विद्यमान विशेष लक्षण को दर्शाने वाले संबंध के जो है आरेखित होते हैं और निरूपण भी होते हैं। आनुवंशिक परामर्शदाता एक वंशावली आरेख बनाता है और तदनुसार परामर्श देता है कि वंशावली आरेख के देखे वर्गों का वृत्त का अध्ययन भी जरूरी रहता है। देखिए तो इसी चार्ट से जो है पेडिग्री चार्ट से वो बता देते हैं कि दो बच्चों की मैरिज में, ठीक है, पुरुष और स्त्री के मैरिज में जो होगा कौन सी बीमारी बच्चों में जाएगा और किस प्रकार के दोष से जो है वो ग्रसित होगा। और मान लीजिए कोई पीढ़ी में अगर अंधा रहा हो या कोई पीढ़ी में किसी बीमारी का शिकार रहा हो, अगर वो दोनों आपस में उसके बच्चे से मैरिज होता है तो ये 100% है कि आगे वाला जनरेशन में वो कुछ गुण जो जरूर जाएगा। तो इसलिए सारी बातों को देख के ही जो है मैरिज करने की ज़रूरत होती है, नहीं तो आने वाला जनरेशन में बीमारियां स्थानांतरित होती है। तभी एक बात बताया जाता है कभी भी सगे संबंधी से मैरिज नहीं करना चाहिए, नहीं तो जीण जो है कहीं ना कहीं जो है विकार उत्पन्न कर सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था और काफ़ी ज़रूरी भी था। इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर
ख़त्म हो रहा है। आगे का चैप्टर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो अगला चैप्टर देखना मत भूलिएगा। उसमें हम बहुत ही जेनेटिक के बारे में और भी विस्तार से जानेंगे और समझेंगे कि और क्या क्या उसमें है। तो इसी तरह आप कृपाण चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में एक काम इम्पोर्टेंट जो है जिसको भूलना नहीं है वो ये है कि इसका कॉपी के जो है आपने क्या करना, लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है।